Friends, today we discuss about hypertext transfer protocol. As we know that protocols are the set of rules which are applicable on internet. So today we discuss about a hypertext transfer protocol. Before discussing HTTP, we first come to know what are URLs. URLs are the uniform resource locator and they are required for locating a particular website. URL are subdivided into four parts. First is the protocol HTTP hypertext transfer protocol, then subdomain www world wide web dot domain name and .com is for commercial. So what is HTTP? HTTP is an hypertext transfer protocol and it is the set of rules for transferring files such as text, graphic, images, sound, video and other multimedia files on the World Wide Web. And the communication between client computer and web servers is done by sending HTTP request and receiving HTTP response. HTTP is an application layer protocol and it is a connectionless and stateless protocol. HTTP functionality. As we know that HTTP protocol is used by World Wide Web and this protocol defines how messages are formatted and transmitted and what actions web servers and browsers should take in response to various commands. For example, you want to enter a URL in your browser. आपने अपने ब्राउज़र में एक URL एंटर किया. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने www.cbsc.nic.in लिखा. ठीक है, आपने वो ब्राउज़र अपने ब्राउज़र में आपने URL एंटर किया. यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट. तो वो आप एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो कि यू वांट टू ओपन दैट वेबसाइट. तो वो क्या हुआ, ब्राउज़र जो आपका ब्राउज़र है वो क्लाइंट है, उसने रिक्वेस्ट सेंड की ओवर द नेटवर्क हमारा यहाँ पे क्या है, TCP/IP. सो आप क्लाइंट हो. एज अ क्लाइंट यू सेंड योर रिक्वेस्ट ऑन अ नेटवर्क दैट यू वांट टू ओपन अ वेब पेज www.cbsc.nic.in. जो आपकी रिक्वेस्ट थी वो HTTP सर्वर के पास गई. HTTP सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया एंड इट सेंड बैक रिस्पॉन्स टू यू. तो HTTP सर्वर ने रिस्पॉन्स आपको वापस सेंड कर दिया. सो इन दिस वे HTTP वर्क्स. HTTP के जो कनेक्शंस हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन परसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट. अगर हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट को सेंड कर रहे हैं TCP के तो इट इज़ अ नॉन परसिस्टेंट HTTP एंड इफ़ यू आर सेंडिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ओवर अ सिंगल TCP कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर देन इट इज़ अ परसिस्टेंट HTTP. नाउ HTTP ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं, जो क्लाइंट है, क्लाइंट इनिशियलाइज द ट्रांजैक्शन बाय सेंडिंग अ रिक्वेस्ट मैसेज. तो क्लाइंट ने ट्रांजैक्शन को इनिशियलाइज किया, इट सेंड अ रिक्वेस्ट एंड सर्वर ने उस जो रिक्वेस्ट आई थी क्लाइंट से उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया एंड सेंड बैक अ रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट. Now HTTP session consists of three phases. First is client establishes a TCP connection. तो first of all जब आप अपने ब्राउज़र पे कोई वेब पेज ओपन करते हो तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हो. You are establishing a TCP connection. After that client send its request and then waits for the answer. आप URL टाइप करके जब एंटर करते हो then you are sending a request to the server. The server process the request and send back its answer. तो जब आप एंटर करते हो वो रिक्वेस्ट आपकी सर्वर के पास जाती है, सर्वर रिस्पॉन्स करके आपका वो पर्टिकुलर वेब पेज ओपन कर देता है. अगर वो उसके पास अवेलेबल नहीं है तो इट सेंड्स यू द मैसेज. आफ्टर डेट जब आपका पेज ओपन हो गया तो कनेक्शन क्लोज हो जाता है. नाउ वर्किंग ऑफ HTTP. फर्स्ट ऑफ ऑल आप HTTP क्लाइंट, वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र से आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो. यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट मैसेज ओवर TCP/IP एंड
वो मैसेज आपका जा रहा है वेब सर्वर के पास और HTTP सर्वर के पास। HTTP सर्वर उस मैसेज को, रिक्वेस्ट मैसेज को प्रोसेस करता है एंड इफ़ सर्विसेज आर अवेलेबल तो वो आपको सेंड कर देता है, इट सेंड अ रिस्पॉन्स मैसेज ओवर TCP/IP, देन दैट मैसेज रीच टू HTTP क्लाइंट और आपका वो पर्टिकुलर वेब पेज ओपन हो जाता है। An HTTP client sends a request message to an HTTP server. The server returns a response message. As we know that HTTP is a stateless protocol. Stateless means जो current request है it does not know anything about the previous request. Previous में आपने जो request की है उसे वो current request को नहीं पता होती है. That's why HTTP is known as a stateless protocol. ना जो आप मैसेज सेंड करते हो ऑन ओवर अ TCP, आपका जो HTTP ब्राउज़र है, आप रिक्वेस्ट मैसेज सेंड कर रहे हो, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट उसमें रिक्वेस्ट लाइन होती है, जो रिक्वेस्ट मैसेज इज कंसिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट लाइन, हेडर, ब्लैंक लाइन एंड अ बॉडी। समटाइम्स बॉडी विल बी प्रेजेंट एंड समटाइम्स नॉट। और जो रिस्पॉन्स मैसेज है सर्वर आपको रिटर्न में सेंड करता है, इट कंसिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट मी, हेडर, ब्लैंक लाइन एंड बॉडी। समटाइम्स सब मैसेजेस में बॉडी प्रेजेंट होती है और सब मैसेजेस में नहीं होती है। So these are the request and response messages. This is all about the HTTP protocol. Thank you.